Now we start binary operation. Okay, binary operation. What is the binary operation? Simply, the binary operation is a method to obtain a new element of set G from two known element of set G. किसी भी सेट G के दो नोन एलिमेंट से एक अगर नया एलिमेंट ऑब्टेन हो रहा है, देन दिस मेथड इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन. क्लियर? यानी क्या है, स्टार सच दैट G क्रॉस G टू G, देन स्टार इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन. फॉर एग्जाम्पल, कि क्या है, मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेट एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इफ A, B बिलोंग्स टू N, N के दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, देन A प्लस B किस में बिलोंग करेगा, N की कोई से भी दो एलिमेंट लीजिए. द एडिशन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज आल्सो ए नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू N, दैट्स व्हाई इट इम्प्लाइज प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन in N. Simply A cross B also belongs to N. The multiplication of two natural number is also a natural number. That's why multiplication is also a, it implies multiplication is also a binary operation in N. But if we write A minus B, अब जरूर नहीं है. क्यों? कि मान लेते हैं जैसे 2, ध्यान से देखिएगा, 2,3 belongs to N, but 2 minus 3 is equal to minus 1, does not belongs to N. So minus A minus B may not belongs to N. It means subtraction is not a binary operation in N. Clear? But बात करें हम if AB belongs to Z में बात करें, तो उस केस में A plus B, AB belongs to Z, set of integers, set of integer. Then AB also belongs to Z, A minus B also belongs to Z, A cross B also belongs to Z, but A divide B may not belongs to Z, because the division of two integer may not be an integer. It means division is not a binary operation in set of integers, but the plus, minus and multiplication is the binary operation in set of integers. Okay, after this we define an algebraic structure. Structure is called an algebraic structure. Algebraic structure. What is an algebraic structure? If G is a set and star is a binary operation, then this complete structure is called an algebraic structure. Clear? Group होगा, group इसी से define होगा. Now we define group, the main concept of our lecture, group. The definition of group is, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन इसको डिस्कस करेंगे. लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन. देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G कोमा स्टार, ध्यान सुनिएगा, then the algebraic structure G comma star is called a group if number 1 G satisfies the properties. Number 1, closure. It implies if A belongs to G, AB belongs to G, it means A star B also belongs to G. This property is called closure property. Second, existence of identity element. It means if A belongs to G, then there exists E belongs to G
such that A star E is equal to A, then we say that E is the identity element of G under the binary operation star. Number 3, existence of inverse. Okay. Number second is associative property. ये क्या होती है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी देन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें, ठीक है, तब भी ऑपरेशन से जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वही वैल्यू क्या आएगी, राइट हैंड साइड में आएगी। इसमें क्या हो रहा है, पहले हम ए को बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, देन जो क्वांटिटी है उसको सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि इस केस में क्या कर रहे हैं हम, Number 3 is associative property. If A, B, C belongs to G, then A star B star C is equal to A star B star C. This property is called associative property. इसमें क्या हो रहा है कि अगर A और B को हम पहले ऑपरेट कर रहे हैं, देन उसके साथ C को ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू किसके को लाएगी, अगर हम B और C को पहले ऑपरेट करें और देन उसके ऊपर A को ऑपरेट करें। क्लियर, नथिंग एल्स। नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये क्या है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, देन ई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी अंडर the binary operation star. Number 4 is existence of inverse element. What is this? If A belongs to G, then there exists B belongs to G such that A star B is equal to E, the identity element. यानी कि अगर G का कोई एलिमेंट है A, देन वहाँ पर B होना चाहिए, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि A और B को अगर बाइनरी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, देन हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A in G. Clear? One important type of group is called abelian group और commutative group. ये क्या होता है कि if G comma star is a group, if G comma star is a group and AB belongs to G, then A star B is equal to B star A. It means the element of G satisfy commutative property, then G is called a abelian group. Then G is called an abelian group. Clear? यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। नाउ वी डिस्कस, हमने जो प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताई थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1, नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 आइडेंटिटी, नंबर 4 इनवर्स, नंबर 5 कम्यूटेटिव।
पूरी ग्रुप थ्योरी है जो इन्हीं 5 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो थोड़ा सा ढंग से इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि है क्या एक्चुअल में चीज़ें, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे ग्रुप के। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मीन्स है कि अगर किसी सेट के 2 एलिमेंट लेते हैं और उनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो जो न्यू एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट का है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि नेचुरल नंबर किस केस में, कि इफ एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, इट इम्प्लाइज a plus b also belongs to n. It means plus is closed under n is closed, the set n is closed under the binary operation plus. But if a minus b, a b belongs to n, it implies a minus b may not be belongs to n. यानी कि माइनस जो है ये क्लोज नहीं है नेचुरल नंबर के केस में, क्लियर। बट हम जब बात करें सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, z is equal to set of integers, and if ab belongs to z, it implies a plus b also belongs to z, a minus b z also belongs to z, a cross b also belongs to z, but a divide b does not belongs to z. It means multiplication, division is not closed under the set of integers, clear. So that is the concept of closure property. Now next is associative, clear है ना? Okay, the next is associative property. a star b star c is equal to a star b star c. अच्छा, बात करते हैं हम इफ n इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन प्लस के केस में देखते हैं a प्लस b प्लस c, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस b प्लस c। सिंपली अगर हम करते हैं a क्रॉस b क्रॉस c तो ये क्या हो जाएगा? a क्रॉस b क्रॉस c, यानी प्लस भी एसोसिएटिव है और क्रॉस भी एसोसिएटिव है, ठीक है। बट जब बात करते हैं माइनस की बात करें कि a माइनस बी माइनस सी, अब इसको हम ये नहीं लिख सकते a माइनस बी माइनस सी, दैट इज रॉन्ग। इट मीन्स माइनस इज नॉट एसोसिएटिव, क्लियर। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एक तरह का एलिमेंट होता है। क्या होता है कि इफ a बिलोंग्स टू g देन देयर एग्जिस्ट e बिलोंग्स टू g सच दैट a स्टार e इज इक्वल टू क्या आ जाए? a आ जाए। तो e क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि बाइनरी ऑपरेशन प्लस के केस में देखें, प्लस के केस में किसी एलिमेंट में, ये एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर में हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का हो सकता है, कोई एलिमेंट है ए में क्या ऐड करें हम कि ए दोबारा आ जाए? 0। और अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में देखिए हम ए को किससे मल्टीप्लाई करें? प्लस मल्टीप्लिकेशन, ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि ए दोबारा आ जाए? 1। इट मीन्स प्लस के केस में 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट एंड क्रॉस के केस में 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में किसी भी एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमेंट वही का वही एलिमेंट आएगा। और अगर एडिशन के केस में लेते हैं तो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी सेट के किसी भी एलिमेंट को अगर 0 ऐड कर देते हैं तो अगेन वही एलिमेंट हमें मिलेगा। इट मीन्स 0 is the identity element under the binary composition binary operation plus, and 1 is the identity element under the binary operation cross. ये डिपेंड करेगा हम कौन सा सेट ले रहे हैं और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन क्या क्या है। जो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होंगे यहाँ पर, क्लियर। वो हम देखेंगे जब ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट।
इन्वर्स एलिमेंट मीन्स कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ई आ जाता है, वेयर ई इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर स्टार। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस के केस में देखें हम सेट, हम कोई भी सेट ले सकते हैं, कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर सेट ऑफ इंटीजर ले सकते हैं। प्लस के केस में हम देखें तो ए को किससे ऐड, ए में क्या ऐड करें कि हमारे पास प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। अभी हमने फाइंड किया था। ए में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, माइनस ए। इट मीन्स माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस। क्लियर। ऐसे हम जब मल्टीप्लाई की बात करें तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए, 1/a से। तो 1/a इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नंबर का एग्जांपल देखते हैं कि 2 में क्या ऐड करें, 2 में -2 ऐड करें तभी क्या आएगा, 0। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। क्लियर। तो 1/5 इज इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, -2 इज इनवर्स अंडर प्लस ऑफ 2, 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर। तो डिपेंड करेगा हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है और हमारा सेट क्या है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में -2 डिफाइन नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इन्वर्स तो प्लस के केस में -2 आएगा, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में -2 है ही नहीं। तो उस केस में इन्वर्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर के केस में किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिलेगा ही नहीं। इट मीन्स देयर आर नो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ऐसे ही हम बात करें, अगर इंटीजर्स की बात करें या नेचुरल नंबर की बात करें तो 5 का मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होगा, 1/5, एक रेशनल नंबर आ रहा है। इट मीन्स नेचुरल नंबर या इंटीजर के केस में हमारे पास एवरी एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स हमें मिलेगा ही नहीं। इट मीन्स वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप में इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर। सो दिस इज our inverse element property. Now last is commutative property. Commutative property means कि if A star B is equal to B star A, यानी कि अगर हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू होती है। इट मीन्स वो एलिमेंट्स क्या हैं, कम्यूटेटिव हैं। जैसे कि बात करें हम A + B को क्या लिख सकते हैं, B + A लिख सकते हैं हम। ठीक है। A क्रॉस B को क्या लिख सकते हैं हम, B क्रॉस A लिख सकते हैं। इट मीन्स प्लस और क्रॉस क्या है, कम्यूटेटिव है। बट A - B को हम B - A नहीं लिख सकते। इट मीन्स माइनस इज नॉट ए कम्यूटेटिव। ओके। और बाकी देख सकते हैं हम, जैसे ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में बात करें हम। ठीक है। अगर हमारे पास सेट मैट्रिक्स का सेट है तो मैट्रिक्स के सेट में A.B, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। मे नॉट बी इक्वल टू B.A, वेयर AB बिलोंग्स टू मैट्रिक्स। क्लियर। तो वहाँ पर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। तो मैट्रिक्स का सेट जो होगा वो ग्रुप तो फॉर्म करेगा बट कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होगा। ऐसे ही माइनस तो क्लोज भी नहीं होती, तो बात अलग है अपने पास। तो दिस इज अवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप के एग्जाम्पल देखेंगे कि ग्रुप कैसे बनता है और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल केस में क्या क्या आते हैं। ओके, थैंक यू।